चलिए then let us go ahead in our portion. We are doing a chapter called NRI taxation. Chapter is almost over because main part of the chapter हमारा हो गया. In order to prove that, देखिए वैसे भी चैप्टर चालू करने के पहले हमने पूरा कैपिटल गेन्स का पार्ट किया and then within the chapter we also studied in detail about residential status. But now we have reached at such a stage where at least आप कम से कम मुझे इतना तो बता सकते हो, अगर कॉम्बो नहीं हुआ तो normal rate will apply, and if the combo takes place then special rate or normal, whichever is beneficial, because the special provisions here in chapter 12 are optional. When we are talking about this combo, what combo are we referring to? First, specific assessee, second, specific income. जब ये combo होगा तब option मिलता है, and we also know the rates now. So who is the specific assessee? Three conditions: individual, citizen, PIO, दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, and non-resident during the previous year. And what are the specific incomes? Investment income and LTCG arising out of a foreign exchange asset. We also defined what is forex asset first: shares of an Indian company, debenture, deposit of public company, central government securities and any other notified. ये है forex asset. देखिए forex asset का मतलब क्या होता है? If it was acquired in foreign currency, asset आपने इंडिया में acquire किया, but being a non-resident, you came from outside India, you had convertible foreign exchange, that will become something called a forex asset. इसमें से आने वाली जो रेवेन्यू इनकम है, which we call investment income and LTCG, इन दो के लिए स्पेशल रेट प्रिस्क्राइब किया. What is the special rate for investment income? 20. And what is the special rate for long term capital gains? 10%. 20 and 10 both are basic tax rate, and consequently अगर सरचार्ज होगा तो बेसिक टैक्स में सरचार्ज ऐड होगा. इट विल डिपेंड ऑन टोटल इनकम. सरचार्ज उसके ऊपर डिपेंड करता है, सरचार्ज हमेशा नहीं आता है, बट एचईसी तो हमेशा आएगा. दैट विल गिव अस अवर टोटल टैक्स लायबिलिटी. ऑफ कोर्स इफ द नॉन रेसिडेंट अदर देन द टू इनकम्स हैज गॉट सम अदर इनकम आल्सो, तो दैट इनकम विल ऑलवेज गो अंडर नॉर्मल रेट. मतलब सुनिए, नॉन रेसिडेंट की ये दो इनकम है, इन दो के अलावा एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स विल गो एट नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स. जब आप नॉर्मल प्रोविजंस ऑप्ट करते हो, डू यू हैव द ऑप्शन? तब तो सब कुछ नॉर्मल रेट पे जाएगा, एक्सक्यूज मी, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स इफ एनी इनकम फॉल्स इन चैप्टर 12. ये 12A है, तो अगर चैप्टर 12 का कोई इनकम जैसे कैजुअल विनिंग हो गया तो उसका कोई रेट है, वो अलग बात है. अदरवाइज एवरीथिंग विल गो इन नॉर्मल रेट्स. लेकिन जब आप एनआरआई के रेट्स ऑप्ट करते हो, बिकॉज दीज रेट्स आर optional, when you are opting for these rates, at that time these two incomes will be taxed at these rates, but everything else will be taxable at normal rates, and that is going to be your two tax calculations as per NRI, as per normal. Not just that, now you have to also do new taxation regime, and finally तीनों में से जो beneficial होगा, that is what the assessee is going to do. At this stage students feel that चलिए सब तो अब स्पेसिफिक असेसी हो गया, स्पेसिफिक इनकम हो गया, स्पेशल रेट भी हो गया, तो फिर क्वेश्चंस किया जाए. नहीं, क्वेश्चंस पे जाने के पहले एक बहुत बहुत बड़ी चीज सीखना जरूरी है, एंड नॉलेज ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ इज डायरेक्टली चेंज योर क्वेश्चन एंड योर आंसर एंड अकॉर्डिंगली योर नंबर ऑफ मार्क्स. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट when it comes to sum solving of NRI taxation. So please focus on this very important concept. अगर आप NRI के रेट, स्क्रीन दिख रहा है ना, अगर आप NRI के रेट्स ऑप्ट करते हो, क्या ये ऑप्शनल है? अगर आप ऑप्ट करते हो, मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज एप्लीकेबल ओनली इफ यू हैव ऑप्टेड. मींस कैन आई से जो लोग नॉर्मल में जाते हो उसको ये नहीं लगेगा. This is applicable only to those who have opted for NRI का rates. तो आपके ऊपर लगेंगे certain restrictions in computation of total income. The concept is somewhat similar to your old regime, new regime. जब आप न्यू regime में जाते हो, मतलब आपकी टैक्स की रेट कम करवाते हो, तो आपको अकॉर्डिंगली कोई कोई रेस्ट्रिक्शन लगते हैं ना, मेनली बीइंग foregoing of tax benefits. Something similar is going to happen out here.
इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर द रेट्स गिवन अंडर एनआरआई, व्हाट आर द रेट्स गिवन अंडर एनआरआई? दो ही इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए क्या रेट्स है? 20, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 10. अगर आपने एनआरआई की रेट्स ऑप्ट किया, सो फॉर योर इन्वेस्टमेंट इनकम एज वेल एज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे. देयर विल बी सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन बोथ. देयर आर 3 restrictions on investment income and there are 3 restrictions on LTCG. दोनों में कितने रेस्ट्रिक्शन लगेंगे? 3 each. When will the restriction apply? जब आप एनआरआई के रेट्स ऑप्ट करोगे तब. उसमें ये जो पहला वाला है ना, ये अलग है, मींस ये और ये दोनों अलग है. अदरवाइज these two are same, these two are same. Restriction number 2 and 3 are same. Restriction number 2 and restriction number 3 are same. Only the first one is different. But इसके साथ साथ मैं आपके साथ थोड़ा और इस टेबल को ड्रैग करके एक और चीज समझाऊंगा कि अगर असेसी नॉर्मल वाले प्रोविजंस ऑप्ट करता है, डज द असेसी हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग इन नॉर्मल? देन ऑब्वियसली यहां पे जो रेस्ट्रिक्शन है, कॉमन सेंस बोलता है दैट यहां पे दिए हुए रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं करने चाहिए, बिकॉज द हेडिंग क्लियरली इज टेलिंग अस दैट द रेस्ट्रिक्शन विल बी एप्लीकेबल. कभी इवन दैट मींस कैन आई से यहां पे और एलटीसीजी के लिए यहां पे, सी दिस साइड इज फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम, दिस साइड इज फॉर एलटीसीजी, यहां पे एंड यहां पे वो रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं करेगा. हेलो, करेक्ट और नो? तो लिसन मित्रों, सुनिए, मैं आपके साथ एक टेबल करूंगा. दिस टेबल हैज गॉट 4 ग्रिड्स. ग्रिड समझते हो? ग्रिड बॉक्स, 4 बॉक्स. बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4. बॉक्स नंबर 1 इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर मैंने एनआरआई के रेट्स ऑप्ट किए तो. बॉक्स नंबर 3 इज वो रेस्ट्रिक्शंस चले जाएंगे अगर मैं नॉर्मल में गया. बॉक्स नंबर 2 इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन एलटीसीजी, अगर मैंने एनआरआई के रेट्स ऑप्ट किए तो. बॉक्स नंबर 4 इज वो रेस्ट्रिक्शंस चले जाएंगे अगर मैं नॉर्मल में गया तो. नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग द 4 बॉक्सेस दैट वी हैव मेड हियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट विल बी द, बी क्लियर अबाउट व्हाट the restrictions will apply when you have opted for NRI, and accordingly the restrictions will be taken away when you go for normal provisions. चलिए आराम से देखने की कोशिश करते हैं what are the restrictions. Point A, under investment income, जब आप NRI के रेट्स ऑप्ट करते हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा. You will not get, this is shocking and surprising, but yes it is true, you will not get any deduction of एक्सपेंसेस. अगर आपने एनआरआई के रेट्स ऑप्ट किए तो आपको आपके एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलना बंद हो जाएगा. यू विल नॉट गेट एनी डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस. दिस इज दैट वे, अगर थिंक अबाउट इट, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स का बेसिक प्रिंसिपल बोलता है, लिसन टू मी, जिसने आज के पहले कभी यह बात को सुना नहीं है, whenever there is an expense incurred for the purpose of earning income, we get deduction. सेल्स में से हम परचेसेस माइनस करके प्रॉफिट पे टैक्स. इनकम टैक्स में हमेशा नेट इनकम पे टैक्स लगता है, कभी ग्रॉस इनकम पे टैक्स नहीं लगता है. इफ आई टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, सुनना मेरी बात, सुनना. मैं नॉन रेसिडेंट, भूखा नंगा गरीब आदमी, मेरे पास इंडिया में डिबेंचर्स खरीदने के लिए पैसा नहीं था. हेलो, इज इट पॉसिबल? तो मैंने लोन लिया और मैंने लोन के पैसे से डिबेंचर्स खरीदा. दैट मीन्स कैन आई से डिबेंचर इंटरेस्ट जो मैं कमा रहा हूं, सामने मैं लोन पे इंटरेस्ट भरता भी रहूंगा. दैट मीन्स द नेट प्रॉफिट दैट आई एम अर्निंग इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दैट नेट इनकम इज टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन. एग्जांपल से बात करते हैं. चल न्यूमेरिकल एग्जांपल. 1 लाख रुपए का लोन लिया 8% पर एनम. 1 लाख 8% पर एनम. तो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन दैट आई विल पे? साल का 8,000. और उसके सामने मैंने डिबेंचर खरीदे 1 लाख के, डिबेंचर का कूपन रेट 10% है,
मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट में कमाऊंगा कितना, सामने एक्सपेंस कितना। इनकम टैक्स का बेसिक प्रिंसिपल बोलता है दैट 2000 शुड बी टैक्सेबल, एक्सपेंस का डिडक्शन मिलना चाहिए। लेकिन तेरे को कीड़ा है ना, कीड़ा, व्हाट कीड़ा, मेरे को स्पेशल रेट चाहिए, मेरे को एनआरआई में जाने का है। तो सुन, 10,000 विल बी टैक्सेबल, ग्रॉस इनकम विल बी टैक्सेबल, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा। वी आर लर्निंग रेस्ट्रिक्शंस। व्हाट आर वी लर्निंग? Restrictions. When will the restrictions apply? Only when we opt for rates given under NRI चैप्टर 12 में। इन्वेस्टमेंट इनकम का 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 10%। अगर तेरे को वो कीड़ा है तो तेरे को रेस्ट्रिक्शंस लगेगा। व्हाट रेस्ट्रिक्शन? सबसे पहला, यू वोंट गेट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस। मतलब ग्रॉस इनकम अपने एग्जांपल के अंदर 10,000 इज गोइंग टू बी फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। क्या वो समझा? वैसे तो मेरा ऑब्जेक्टिव आपके साथ ये खत्म करना, फिर मैं आपके साथ यहां पे जाऊंगा। कैन आई से दिस इज द सेकेंड बॉक्स जहां पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं अप्लाई करेगा अगर मैं नॉर्मल में जाऊंगा। उसके बाद में मैं एलटीसीजी पे आऊंगा। आई एम गोइंग टू, मेरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले मैं इन्वेस्टमेंट इनकम पूरा खत्म करूंगा, फिर मैं एलटीसीजी पे जाऊंगा। वैसे भी डिड आई टेल यू दैट यहां पे दो और रेस्ट्रिक्शन है, वो दोनों तो सेम ही है। डिफरेंस खाली पहले वाले रेस्ट्रिक्शन के अंदर है। बी एंड सी आर सेम, बोथ अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एलटीसीजी। तो मैं आपको यहां का जो पहला वाला रेस्ट्रिक्शन है ना, वैसे बाद में आपको करवाना है, लेकिन कंपैरिजन पर्पस के लिए समझना जरूरी है दैट अ रेस्ट्रिक्शन लाइक दिस कैनॉट अप्लाई ओवर हियर। पहला वाला रेस्ट्रिक्शन अलग है दोनों का, बी एंड सी सेम है। फर्स्ट वन इज नॉट सेम, फर्स्ट वन कैनॉट बी सेम। प्लीज यूज योर ब्रेन। अंडर एलटीसीजी वी कैनॉट राइट अ पॉइंट लाइक दिस, बिकॉज अगर अंडर एलटीसीजी आपने ऐसा पॉइंट लिखा कि डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब आप इतनी बड़ी डिजास्ट्रस बात कर रहे हो। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू यू सेल कंसिडरेशन इज टैक्सेबल, अकॉर्डिंग टू यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस नहीं होगा। वी कैनॉट बी दैट स्टूपिड। डू यू अंडरस्टैंड दैट प्लीज? यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट द डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दैट मीन्स टेल मी, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस का रेस्ट्रिक्शन कहां पर लगेगा? इन्वेस्टमेंट इनकम पे लगेगा। मतलब एलटीसीजी के ऊपर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस हमको, एलटीसीजी के अंदर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस वी विल गेट और वी वोंट गेट। अंडर एलटीसीजी डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस हमको मिलेगा। अंडर एलटीसीजी वी आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, क्योंकि ये पहला वाला रेस्ट्रिक्शन यहां पर अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब अगर आपने फॉरेक्स एसेट को ट्रांसफर किया, उसके ऊपर जो भी ब्रोकरेज ट्रांसफर एक्सपेंस, विल यू गेट द डिडक्शन ऑफ दोज एक्सपेंसेस? यस, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन इधर है ही नहीं। विल यू गेट डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? यस। पहला वाला जो ये वाला रेस्ट्रिक्शन है, दिस इज ओनली अंडर इन्वेस्टमेंट इनकम। अ रेस्ट्रिक्शन लाइक दिस कैनॉट बी अप्लाइड टू कैपिटल गेन्स। नहीं तो गलती से सेलिंग प्राइस को हम टैक्स लगा देंगे, एंड हमको टैक्स किसके ऊपर लगाने का है? ओनली द गेन पोर्शन। तो इन शॉर्ट, क्या एलटीसीजी में डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस मिलेगा? चलिए, वेरी गुड। अभी आइए इस साइड एलटीसीजी पे। एलटीसीजी पे ये वाला रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगेगा, तो कोई बात नहीं। एलटीसीजी का अपना खुद का एक इन हाउस रेस्ट्रिक्शन है, अपना खुद का इन हाउस रेस्ट्रिक्शन है। गैस करना चाहोगे? यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। एक बात बताओ, क्या इधर आबे, वेन आई टॉट यू द रेट अंडर एलटीसीजी, एक सेकेंड इधर आ, ये 10% जब कराया ना, तुम्हारी तो ट्यूबलाइट तभी जल जानी चाहिए थी। दैट इफ द रेट ऑफ टैक्स इज सो लेस, that means by default and automatically the assessee will have to forego the benefit of indexation. जब रेट ऑफ टैक्स इतना कम कर दिया तो इंडेक्सेशन एनीवेज नहीं मिलेगा। अब याद कीजिए मित्रों, जब हमने वो लिस्ट बनाई थी 7 केसेस ऑफ नो इंडेक्सेशन, उस लिस्ट में हमने एक पॉइंट लिखा था एनआरआई टैक्सेशन। और तब मैंने आपको बोला था दैट वैसे आपको एनआरआई के चैप्टर के बारे में या स्पेशल रेट्स के चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, but now you know one thing, that indexation का benefit is not going to be available.
नाउ वी नो वन थिंग दैट इंडेक्सेशन बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल, एनआरआई स्पेशल रेट्स दोनों में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा. सो एंड ऑफ कोर्स डू यू अंडरस्टैंड कि फिर ये वाला रेस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं लग सकता. हेलो, because under revenue income there is no question of investment ये indexation. That means do you understand, जो पहला वाला पॉइंट है ये दोनों का अपना अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट है. What is the restriction under investment income and what is the restriction under long term capital gains? And then as I told you that second and third restrictions are same under both. And mind you, these restrictions are applicable only when NRI wala rates are opted, meaning thereby when we will come to these boxes at that point of time, the given restrictions are not going to be applicable. Have we understood? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन के ऊपर जाते हैं. You are not going to get any बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. मतलब सुनिए, इफ दिस 10th नॉर्मल प्रोविजंस में दिस इज लेस देन 250, तो वी एंड अप टेकिंग बेसिक एग्जेम्पशन. ओके, voice is back now. No basic exemption limit. This is what I was asking you. ये 10,000 रुपया, if this is my only income for the year, that means can I say under normal provisions, this being below the basic exemption limit, I will pay no tax. लेकिन तेरे को कीड़ा है सर, मेरे को एनआरआई चाहिए, एनआरआई चाहिए, एनआरआई चाहिए, तो सुन, this 10,000 will be directly taxable at 20%. That's the rate of tax on investment income without any basic exemption. You are not going to get any basic exemption limit if you have opted for NRI का rates. No basic exemption limit. आपको याद है that concept of unexhausted basic exemption limit जो हम 112A करने के टाइम पे पढ़े थे? हम गाना गाए थे, गाना याद है? गाना गाओ, गाओ अगर याद है तो. 2 people 3 income. बहुत अच्छे. 2 people 3 incomes. चलिए वो 2 people बता दीजिए, 3 incomes बाद में देखते हैं. रबिश. जिसने भी इंडिविजुअल एचयूएफ बोला वो रबिश आंसर है. गिव मी द करेक्ट आंसर. रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट एचयूएफ. रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट एचयूएफ आर द पीपल हु आर एलिजिबल. एंड हु इज द असेसी हियर? इस चैप्टर के अंदर हु इज द असेसी. एंड thus I think now I don't need to explain this to you. The benefit of utilizing basic exemption limit is available only to resident individual, resident HUF. This is a non-resident assessee. Unexhausted basic exemption limit आप नहीं यूटिलाइज कर सकते हो. इन अदर वर्ड्स, पहली बात तो 2,000 नहीं टैक्सेबल होगा, 10,000 पूरा टैक्सेबल होगा. और दूसरी बात, डायरेक्टली 20% के ऊपर जाएगा विदाउट गिविंग यू एनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. इज दिस अंडरस्टूड? And then the third restriction here, we are under restrictions of investment income. जब investment income खत्म हो जाएगा तभी हम लोग किधर जाएगा? LTCG. थर्ड रेस्ट्रिक्शन पे आते हैं. ये तो किसी ने गैस कर भी लिया था शायद. No chapter 6A deduction will be available. No chapter 6A deduction will be available. और हमने हमारा वो एक स्पेशल वाला पेज है ना, उस पे तो नोट बना के लिखा है. याद कीजिए, नोट लिखा है कि नहीं? व्हाट डिड वी राइट देयर? व्हाट डिड वी राइट देयर? व्हेनेवर एन इनकम इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स. Whenever an income is taxable at special rates, no chapter 6A deduction. Have we written that? अब खाली इतना बता दीजिए, जब मैं यहां पे जा रहा हूं तब मैं नॉर्मल में जा रहा हूं कि स्पेशल रेट में जा रहा हूं? तो फिर मुझे यहां पे चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा. करेक्ट है?
बस, तो सिंपल है. These are the three restrictions. What are the three restrictions applicable on investment income? No deduction of expense, no basic exemption, no chapter 6 है. बट याद रहे ओनली व्हेन एनआरआई का रेट्स आपने ऑप्ट किया तब, ओनली व्हेन यू ऑप्ट फॉर एनआरआई. अगर आप नॉर्मल में गए तो क्या आपको डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस मिलेगा? यस, यू विल गेट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस. नॉर्मल में यस, यू विल गेट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, मिलेगा. मतलब वही सेम एग्जांपल लेंगे तो 10,000 के ऊपर नहीं, 2,000 के ऊपर आपको टैक्स भरना. अगर आप नॉर्मल प्रोविजंस लेते हो, स्पेशल रेट नहीं लेते हो, तो क्या आपको बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा? क्योंकि सुनो सुनो, व्हाट विल आंसर, व्हाट लॉजिक विल आंसर, आपके दिमाग में क्या सोचना चाहिए आपको. यहां पे जब मैं आऊंगा तो इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? 20. यहां पे जब मैं आऊंगा तो रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? स्लैब रेट. और स्लैब कहां से चालू होता है? 0% से ही तो चालू होता है. यस और नो? तो क्या मुझे बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा? यस. हाउ मच विल बी द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? 2,50,000. फॉर सीनियर सिटीजन्स इट विल बी but it will remain 2,50,000. बोले हाउ, कोई को तो समझा नहीं. हाउ नॉन रेसिडेंट. हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट. बहुत बड़ा फैक्टर है कितने प्रोविजन रेसिडेंट को लगते हैं और कितने प्रोविजन नॉन रेसिडेंट को लगते हैं. ये सब बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स है. बिकॉज अब नॉन रेसिडेंट के प्रोविजंस मतलब इंटरनेशनल टैक्स, एंड thus you have to take them very very seriously. I hope you understand what I am saying here. एंड तीसरा सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट. तो फिर चैप्टर 6A का डिडक्शन भी आपको मिलेगा. दिस इज द डिफरेंस दैट विल हैपन. अगर आप 20% का रेट लेते हो एनआरआई का चैप्टर तो ये लगेगा, अदरवाइज आपको नॉर्मल में जाने के टाइम पे ये भी एक भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा. सो द रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम आर नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो चैप्टर 6 है. क्या बोला? नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो चैप्टर 6A. These are the restrictions that are going to be applicable on investment income. And if we talk about long term capital gain, now let's go to that side. Did I tell you already कि ये वाला restriction वहां पर नहीं लग सकता? So will we get deduction of cost of acquisition? Will we get deduction of brokerage transfer expense? Yes. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अपना खुद का एक रेस्ट्रिक्शन है. व्हाट इज दैट ओन रेस्ट्रिक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का? नो इंडेक्सेशन. एंड ऑफ कोर्स वो वाला इन्वेस्टमेंट इनकम पे नहीं लग सकता. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू बाकी दोनों सेम है. नो बेसिक एग्जेम्पशन. क्यों नो बेसिक एग्जेम्पशन? क्योंकि याद है टू पीपल थ्री इनकम. याद है? हु आर द टू पीपल? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF. अगेंस्ट 111A, 112 and 112A are allowed to utilize. No basic exemption. And तीसरा, is this a normal rate or a special rate? Then obviously no chapter 6 से deduction. And ये तो long ago I told you that B and C are same only. चालू किया तभी बोल दिया B and C are same. डिफरेंस खाली पॉइंट A में. तो व्हाट इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन जो अपना अपना इंडिविजुअल है अंडर इन्वेस्टमेंट इनकम? नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस. एंड अंडर LTCG नो इंडेक्सेशन. एंड देन बाकी दोनों कॉमन रेस्ट्रिक्शन, नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो चैप्टर 6 है. अब हम आते हैं हमारे लास्ट बॉक्स में. आई एम डिफाइनिंग द बॉक्स, सी इफ यू अंडरस्टैंड. LTCG का ट्रीटमेंट इफ नॉर्मल प्रोविजंस आर ऑप्टेड. ये LTCG का अगर NRI ऑप्टेड था, ये LTCG अगर नॉर्मल ऑप्टेड है. क्या आपको ये समझ में आता है? वी विल टॉक अबाउट द 3 पॉइंट्स दैट वी हैव रिटन इन कंपैरिजन. जैसे यहां पे नो डिडक्शन, यहां पे डिडक्शन, यहां पे नो बेसिक एग्जेम्पशन, यहां पे बेसिक एग्जेम्पशन, यहां पे नो चैप्टर 6 है, यहां पे चैप्टर 6 है. वैसे ही हम कंपैरिजन करेंगे यहां के 3 पॉइंट्स का. इफ वी गो फॉर NRI रेट्स, नो इंडेक्सेशन, नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो चैप्टर 6 है.
इफ वी गो फॉर नॉर्मल रेट्स क्या होगा वो हमको डिस्कस करना है. उल्टे ऑर्डर में चलते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा. पहले सी की बात करते हैं. व्हाट इज पॉइंट सी ओवर हियर? नो चैप्टर 6A डिडक्शन. मतलब कैन आई कंक्लूड इफ आई ऑप्ट फॉर रेट्स अंडर एनआरआई टैक्सेशन दैट इज 10% फॉर एलटीसीजी, तो फिर मुझे उसके सामने चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा. दैट्स द पॉइंट हियर. बट इफ आई गो टू नॉर्मल रेट्स एंड आई कम हियर, तो मुझे चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा. सर वाई सर? एक लाइन बोलता हूं, मस्त वाली लाइन है, मजा आएगा सुन के. चाहिए तो किधर लिख लेना, मस्त लाइन है. और कॉन्सेप्ट्स ना ऐसे ही होते हैं. कई बार किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 घंटे तक पकाऊंगा ना, तो भी शायद नहीं आपको कुछ बुद्धि में जाए. लेकिन कोई कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि उसको एक लाइन में निपटाया जा सकता है. सबका अपना अपना टैलेंट ब्रो, सबका अपना अपना टैलेंट. तो सुनो, फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स द नॉर्मल रेट इज ऑल्सो अ स्पेशल रेट. I think this one line is good enough to make you understand what happened here. वापस बोलू? वापस बोलू? For long term capital gain, the normal rate is also a special rate. Hello? Yes. तो नो चैप्टर 6A डिडक्शन नॉर्मल में भी. क्योंकि नॉर्मल में देखिए, अगर आप यहां पे नहीं आओगे तो आप नॉर्मल रेट्स में जाओगे. नॉर्मल रेट्स एलटीसीजी का किधर दिया? 112 में. या स्टॉक मार्केट हुआ तो 112A में. तो वो तो खुद भी स्पेशल रेट ही है ना. और स्पेशल रेट के सामने चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा. करेक्ट है मित्रों? मजा आया? चलिए पॉइंट बी की बात करते हैं. प्रोबेबली द इजीएस्ट ऑफ ऑल. इफ आई ऑप्ट फॉर एनआरआई का रेट्स, तो क्या मुझे बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा? ये तो मैंने इधर लिख दिया. आई एम आस्किंग अबाउट दिस ओनली. देन विल आई गेट बेसिक एग्जेम्पशन? नो. लेकिन अगर मैं नॉर्मल प्रोविजंस में गया तो यहां पे मुझे बेसिक एग्जेम्पशन, हाँ बोला हाउ? बिकॉज 2 people 3 incomes. 2 people 3 incomes. कौन 2 people? रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट HUF. दैट मीन्स मुझे यहां पर भी चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा. करेक्ट? यहां पर भी मुझे बेसिक एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. करेक्ट? अब आते हैं थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट पे. अगर मैंने एनआरआई का रेट्स ऑप्ट किया तो मुझे इंडेक्सेशन, ये तो बोलो लिख दिया है. इफ आई ऑप्ट फॉर एनआरआई का रेट्स तो मुझे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा. लेकिन अगर मैं नॉर्मल में गया तो मुझे इंडेक्सेशन. सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो. लुक एट द डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स एसेट. शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ऑल एसेट्स आर इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटीज. एंड फॉर नॉन रेसिडेंट, एक बार के लिए एनआरआई के चैप्टर को इग्नोर कर दो. एक बार के लिए एनआरआई के चैप्टर को कंप्लीटली इग्नोर कर दो. वी विल स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स. We will strictly talk about the normal provisions of income tax. एक लाइन हमने कहीं पर लिखी थी that जब भी एक नॉन रेजिडेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है उसको कभी भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो. रेट ऑफ टैक्स वी विल गिव हिम व्हाट? 10%. एंड कॉन्सिक्वेंटली वी आर नेवर गोइंग टू गिव हिम
the benefit of indexation even under the normal provisions, because over here all the assets are securities. अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझता है, कोई दिक्कत नहीं, एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक में वो लिस्ट ओपन कीजिए. वी हैड समवेयर मेड अ लिस्ट 7 cases where indexation benefit is not available. We have that list open in front of us. In that list, did we have a point NRI taxation करके? चलिए, वेरी गुड. In that same list, do we have one more point, non-resident acquiring securities in India? At that stage, nobody asked me. Anyways, that was an inappropriate stage to ask such a question. मगर कुछ इंटेलिजेंट बच्चे इन द पास्ट मैंने देखा है, वो तभी आके पूछ लेते हैं, सर नॉन रेजिडेंट 2 बार क्यों लिखा है? एनआरआई तुमने लिखा है, फिर नॉन रेजिडेंट एक्वायरिंग सिक्योरिटीज अलग से लिखा है, ये 2 बार क्यों लिखा है? आज मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं. एनआरआई टैक्सेशन जो पॉइंट लिखा है वो इसके लिए लिखा है, दैट इफ यू ऑप्ट फॉर स्पेशल रेट्स, रेट ऑफ टैक्स 10%, ये वाला, एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा. अगर एनआरआई टैक्सेशन ऑप्ट किया तो वो वाला पॉइंट है एनआरआई टैक्सेशन जो पॉइंट में लिखा है. आई एम टॉकिंग अबाउट विच लिस्ट? नो इंडेक्सेशन वाली लिस्ट खोली है ना आपने. एनआरआई टैक्सेशन इज दिस पॉइंट, और उसी लिस्ट में हमने एक और पॉइंट लिखा है, नॉन रेजिडेंट एक्वायरिंग सिक्योरिटीज. उसका मतलब जब वो नॉर्मल में जाता है, एनीवेज उसका रेट ऑफ टैक्स वहां पे भी 10% ही है. हेलो, जब वो नॉर्मल में जाता है तब भी उसको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली द डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स एसेट, ऑल ऑफ देम आर सिक्योरिटीज. दैट मीन्स एनआरआई को नॉर्मल में भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, स्पेशल में भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा. डू यू एग्री विद दिस? रेट ऑफ टैक्स दोनों में 10% है, एक्सेप्ट इफ नॉर्मल में अगर इक्विटी शेयर्स हुआ. देखिए, शेयर्स इज वन ऑफ द फॉरेक्स एसेट, नो? इक्विटी शेयर्स हुआ, एसटीटी पेड ऑन सेल ऑन और आफ्टर 1/10/2004 ऑल्सो, ऑल द कंडीशंस गिवन इन 112A फुलफिल्ड, तो 112A लगेगा. तो मित्रों सुनो ना, रेट ऑफ टैक्स तो 112A में भी 10% ही था, इंडेक्सेशन तो उधर भी नहीं मिलता था. डिफरेंस इज ओनली कि वहां पे पहले 1 लाख पे टैक्स नहीं लगता है, बस इतना सा डिफरेंस है. अदरवाइज एंटायर टैक्स ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी सेम फॉर एलटीसीजी. नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस का रेस्ट्रिक्शन इन्वेस्टमेंट इनकम पे है, वो यहां पे नहीं लग सकता है. बाकी तीनों रेस्ट्रिक्शन, नो इंडेक्सेशन, नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो चैप्टर 6 से सेम. इन कंक्लूजन, क्या आपको वो समझ में आया कि 7 पॉइंट्स ऑफ नो इंडेक्सेशन में नॉन रेजिडेंट 2 बार क्यों लिखा? एक बार स्पेशल के लिए लिखा, एक बार नॉर्मल के लिए लिखा. मतलब नॉन रेजिडेंट को नॉर्मल में भी नो इंडेक्सेशन, ये वाला पॉइंट, नॉन रेजिडेंट होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इंडिया, एंड नॉन रेजिडेंट को स्पेशल में भी नो इंडेक्सेशन, वो वाला पॉइंट एनआरआई टैक्सेशन. नॉन रेजिडेंट को नॉर्मल में भी नो इंडेक्सेशन, नॉन रेजिडेंट को स्पेशल में भी नो इंडेक्सेशन. हैव यू अंडरस्टूड दिस? एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ कोई स्टूडेंट्स ओवर एक्साइटमेंट में, सर एटले हूं समझी गयो, सर आई हैव अंडरस्टूड, सर इसका मतलब यह है कि एक नॉन रेजिडेंट को इंडिया में कभी भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता है. ट्रू और फॉल्स? False. Why do you say that? In case of jewelry, In case of land, in case of house, in case of gold, silver, indexation मिलेगा. Only in case of securities, you are going to lose the benefit of indexation, both under normal as well as NRI, and at both places we are giving you a concessional rate of tax that is 10% because you are foregoing the benefit of indexation. समझा क्या? These are the restrictions that are going to be applicable if you opt for NRI rates. Ladies and gentlemen, without knowing the restrictions, it is impossible that you can do any kind of question as far as your chapter NRI is concerned. So, we have reached now that stage of our life where जहां पे हमारा सबसे पहले तो स्पेसिफिक असेसी हो गया, स्पेसिफिक इनकम हो गया, स्पेशल रेट भी हो गया. There are only 2 incomes. What are the only 2 incomes covered in the chapter? What is the special rate for investment income? 20%. And LTCG? Plus of course the applicable surcharge and HEC.
HEC is always applicable. However, if you opt for these rates, you will have to undergo certain restrictions. Under investment income, no deduction of expense, no basic exemption, no chapter 6 hai. But all three will go away in normal. So you will get expense, basic exemption as well as chapter 6. And if we talk about LTCG, the three restrictions there are no indexation, no basic exemption, no chapter 6 hai. Both under normal and special, the same restrictions are going to apply. In fact, rate of tax also in both is 10% only. With this, hardly about 3-4 small sections of the chapter are left. Chapter that way is over. The discussion, the provisions, the sum part, solving part, that way theoretically हो गया. हम लोगों को खाली इस चैप्टर के सम्स अभी करने रहेंगे. ओके, आप लोगों को इशू हुआ क्या ये चैप्टर? You all have not received? Then that is your fault. Huh? That is your fault. Then you should have collected it. अभी ये आप इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. There is no ongoing lockdown. There is no as such problem which is prohibiting you from doing that. Okay? इधर मेरा अगर 4 दिन भी अगर बैच चालू होने के बाद में बुक बनने में लेट हो जाता तो क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ, कब मिलेगा कब मिलेगा. और अभी बन के इतना दिन हो गया और आप जाके कलेक्ट नहीं करके आ रहे हो. देन दैट्स अ बिग वे योर मिस्टेक. ठीक है, चलिए अभी मेरे पास दूसरे रास्ते हैं, अभी क्या करेंगे. ओके, चलिए अभी के लिए फोकस करेंगे. वी विल फिनिश द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द chapter and then we will go to questions. And kindly make sure that is there any student in the class who has collected the book actually? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर मैं क्वेश्चंस इनके साथ में करूंगा, क्योंकि जिसने कलेक्ट नहीं किया वो रोना बैठ के इधर क्लास के अंदर. ओके, चलिए वैसे we are left with about 3-4 sections and we'll complete that. Then we will go to the question answer part. While till the time we are doing the theory of the classroom, let me be honest, we will not require the textbook at all. At all. Textbook will be required only when we do question answer. Income Tax Act Control C Control V करके यहाँ पे रखा हुआ है. अब तक हार्ड डिस्क का डेटा क्रैश नहीं हुआ है. इस हार्ड डिस्क में सब कुछ प्रॉपरली सेव करके रखा हुआ है. लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तब बुक, और वो भी बुक की क्या जरूरत है. अभी देखो मेरे को कैसा है, मैंने ये सारे क्वेश्चन हजारों बार किए हुए. दैट वे आई डोंट रिक्वायर द बुक फॉर क्वेश्चंस आल्सो. लेकिन आप रीड करो. क्वेश्चन एक ऐसी चीज है जो आपके सामने होएगा तब आपको पता नहीं कि यार ये क्वेश्चन में इनकम का अमाउंट कितना दिया है, लिखते लिखते भूल गए, तो वापस क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको बुक ओपन करना पड़ेगा ना. क्वेश्चन यू कैन रीड 10 टाइम्स आल्सो. इसके लिए बुक का जरूरत है. ओके, फिलहाल के लिए आगे जाते हैं. जस्ट थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं. ये चैप्टर में अब तक हमने जो पढ़ा उसमें सेक्शन 115C इज द सेक्शन जिसमें सब डेफिनेशंस दिया. डेफिनेशन ऑफ एनआरआई, डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स एसेट, डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, एवरीथिंग इज गिवन. वेयर आर ऑल द डेफिनेशंस गिवन? 115D इज द सेक्शन जहां पर रेस्ट्रिक्शंस दिया. अभी अभी जो हमने पढ़ा ना, नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो चैप्टर 6 है, ये सब किधर दिया है? 115D में. And 115E is that section जहां पर rates दिया. What are the 2 rates given in the chapter? Investment income के लिए 20 and LTCG के लिए 10. Having said that, let me be honest about one more thing. This is one chapter where section numbers are not so important. मतलब अगर आप चाहो तो till the time you know the provision you can ignore section number. लेकिन इसके बाद में अगला जो चैप्टर आएगा, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी डूइंग स्पेशल रेट्स. इन दैट सेक्शन नंबर्स आपको मैंडेटरीली लर्न करना पड़ेगा. तो एक तरीके से एक फिल्टर है, मैं आपके लिए लगाते जाऊंगा. इस चैप्टर में सेक्शन नंबर करो, इसमें नहीं भी करोगे तो चलेगा. चैप्टर आफ्टर चैप्टर आई विल बी टेलिंग यू लर्न और डोंट लर्न, समथिंग लाइक दैट. लिसन, फिर आप उसको फर्दर फिल्टर नहीं कर सकते हो. मतलब मैंने आपको टोटल 43 में से 12-13 चैप्टर ऐसा बोला कि 15 चैप्टर बोला जिसमें आपको मैंडेटरीली सेक्शन नंबर लर्न करना है. फिर आप 15 में से 10 नहीं कर सकते हो. आई एम गोइंग टू फिल्टर आउट वेरी एफिशिएंटली फॉर यू. सो इन एनआरआई यू कैन लीव. ऑन व्हाट कंडीशन इन एनआरआई आई विल अलाउ यू टू लीव सेक्शन नंबर्स? जब तक आप प्रॉमिस करो कि स्पेशल रेट्स में, उसमें बहुत सारे सेक्शन है, इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, तो आप वहां पे आप प्रॉपरली करो और एक एक सेक्शन नंबर आप वहां पे लर्न करो. अरे समझ में आ रहा है क्या?
हाँ, हम इसके आगे जा रहे हैं फिलहाल चैप्टर के अंदर। सेक्शन 115F, एक्सेम्पशन फ्रॉम एलटीसीजी। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इस चैप्टर में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है? यस। क्या आप उस टैक्स से बचना चाहते हो? मतलब एक तो लगा रहे एकदम भिखारी वाला 10% और आपको वो भी भरने का नहीं मन है। इज इट पॉसिबल दैट यू डोंट फील लाइक पेइंग दैट ऑल्सो? ऑफ कोर्स, ऑलवेज पॉसिबल। तो हम उसमें आपको एक एग्जेम्पशन दे रहे हैं। दिस इज समवॉट सिमिलर टू जो आपका कैपिटल गेन्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है। जब हम एक एसेट ट्रांसफर करते हैं तो हमको पैसा मिलता है, दैट्स लाइक आवर सेलिंग प्राइस, एंड देयर इज सम कैपिटल गेन। बट जो पैसा मिला है उस पैसे से अगर हम दूसरा एसेट खरीद लेते हैं, एक एसेट बेच के दूसरा एसेट खरीद लेते हैं, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ ऑल, घर बेच के घर ले। ऑफ कोर्स आई नो दैट यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। फॉरगॉटन क्या, आपने पढ़ा ही नहीं, आप तो आईपीसीसी आईडीटी के भरोसे पास हुए। बट दिस इज समथिंग विच स्टिल पीपल नो कि घर बेच के घर, गवार लोगों को मालूम रहता है, जिसको इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है उनको मालूम रहता है कि घर बेच के घर लेते हैं तो कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिलता है। दैट सिमिलर कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू अप्लाई हियर। यू आर हैविंग LTCG, कैन आई से ऑफ कोर्स इट विल बी ट्रांसफर ऑफ अ फॉरेक्स एसेट, देन ओनली इट विल कम इन दिस चैप्टर। नो, यहां पे कोई हाउस तो आने वाला नहीं है। इस ट्रांसफर ऑफ फॉरेक्स एसेट, दैट LTCG विल बी टैक्सेबल एट 10%। लेकिन एक काम करो, इन्वेस्ट इन अनदर फॉरेक्स एसेट within 6 months. Invest in another forex asset within a period of 6 months, तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन आई विल टीच यू, पहले इसका कंडीशन तो समझिए। मैंने एक फॉरेक्स एसेट बेचा, पैसा आया पैसा आया पैसा आया पैसा आया। लिसन रे, लिसन लिसन लिसन, वो पैसे का मैंने मजा नहीं लूटा। तुरंत क्या किया उस पैसे से मैंने, I have acquired another forex asset, and how much time limit I am given to acquire that another forex asset? सुनिए, अगर आप सेक्शन पढ़ोगे, सुनना मेरी बात, सेक्शन 115 है, अगर आप मेरी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो यहां पे लिखा है इन्वेस्ट इन अनदर फॉरेक्स एसेट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशूड बिफोर 2002। गधेड़े, इशूड बिफोर 2002। आज क्या चल रहा है? तुम लोग पैदा हुए थे क्या 2002 में? जस्ट मेड इट, नो, जस्ट एकदम बॉर्डर लाइन थे। आज कैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करूं? पागल है, नशा करता है सस्ता वाला। ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल दैट टुडे आई हैव इन्वेस्टेड। तो इसलिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं वो वाली बात अभी ना राइटिंग के अंदर उसको नहीं डिस्कस। ऑफ कोर्स सेक्शन में लिखा है इसलिए टेक्स्ट बुक में, जिस दिन वो लोग सेक्शन से निकाल देंगे मैं टेक्स्ट बुक से भी निकाल दूंगा। बट एज ऑफ टुडे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, हाउ कैन यू गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम LTCG का 10% टैक्स? बाय इन्वेस्टिंग इन अनदर फॉरेक्स एसेट। एंड हाउ मच टाइम लिमिट वी आर गिविंग यू टू डू दैट? 6 months। अगर आपने ऐसा कर लिया, इफ यू डू दिस, देन व्हाट विल बी योर एग्जेम्पशन? इफ योर एंटायर नेट सेल कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड, if your entire what is invested? If your entire net sale consideration is invested, entire capital gain will be exempt. If your entire net sale consideration is invested, entire capital gain will be exempt. और अगर ऐसा नहीं हुआ, otherwise, else, इंग्लिश है रे, अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपको देंगे प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन। इफ एंटायर नेट सेल कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड, एंटायर कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट, अदरवाइज प्रोपोर्शनेट। एक मिनट, मैं इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल बना के समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा।
I'll make an example here. But before I make that example, that's the calculation part. Condition part is understood. एक एसेट बेचा, LTCG हुआ, उस पैसे से 6 महीने के अंदर दूसरा एसेट खरीदना. That's the condition. Calculation part example से होगा. खाली लिख लिया हमने. Entire NSE invested, entire capital gain exempt, otherwise proportionate. लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. कंडीशन समझा ना? Within 6 months another forex asset. अब ना कैलकुलेशन को एग्जाम्पल बना के समझते हैं. द ग्रॉस सेल कंसिडरेशन ऑफ माई एसेट वॉज 50,50,000. मतलब मैंने अपना फॉरेक्स एसेट कितने में बेचा? 50,50,000. लेकिन ये बेचने के लिए मुझे कुछ ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा हुआ, ट्रांसफर एक्सपेंस 50,000. बट वी आर डूइंग अ चैप्टर कॉल्ड एनआरआई टैक्सेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली ये जो ट्रांसफर एक्सपेंस है 50,000, इसका कोई डिडक्शन मिलेगा रे गधेड़ास, मिलेगा. मिलेगा. सर आपने तो बोला ना ये चैप्टर में एक्सपेंस नहीं मिलता है. इन्वेस्टमेंट इनकम पे नहीं मिलता है. ये क्या है? कैपिटल गेन. अंडर कैपिटल गेन डू वी गेट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस? तो व्हाट वी डोंट गेट? So what's my net sale consideration? 50 लाख. एक चीज तो आप इस चैप्टर के बारे में समझ गए हो कि एसेट चाहे 2 साल पहले खरीदा हो कि 10 साल पहले खरीदा हो, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि इन रिटर्न वी आर गिविंग यू कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स. हेलो. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख, मोदी जी का फेवरेट फिगर, 15 लाख रुपए. तो कैन आई से वी विल गेट अवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ? अब आता है समय आपका असली टैलेंट दिखाने का. इफ यू आर टैलेंटेड एंड यू बिलीव इन योर सेल्फ, तो अब आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे. और अगर मैं एक ही क्वेश्चन आपको वर्ड्स बदल के पूछूं जिसका आंसर सेम है, तो वापस दे देना वही आंसर. डोंट बी शाई इन गिविंग द सेम आंसर अगेन एंड अगेन. हाउ मच इज द कैपिटल गेन्स? लाउड एंड क्लियर प्लीज. 35. मतलब सेल माइनस कॉस्ट के फॉर्मूला को लगा के हमको गेन कितना मिल रहा है? 35. दैट मीन्स दिस असेसी इफ एग्जेम्पशन की कंडीशन नहीं फुलफिल करेगा, तो दिस असेसी का टैक्सेबल एलटीसीजी कितना है? 35. इस असेसी के पास पैसा कितना है? 50 लाख है. पैसा 50 लाख है. सर हाउ? जेब में हाथ डाल. सुन रहे? जेब में हाथ डाल. टुडे यू सोल्ड योर एसेट एट 50 लाख का 50,000, बट इमीडिएटली यू ऑल्सो पेड ब्रोकरेज या ऐसा कुछ ऑफ 50,000. तो आज तेरे जेब में नेट कितना बचा? 50. ये जो 15 लाख का जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट, दिस वॉज इनकर्ड फ्यू इयर्स अगो. तो टूडेज कैश फ्लो इट हैज गॉट नो रेलेवेंस. दिस 15 lakh has got relevance only in the gain computation. It has got no cash inflow outflow as of today. As of today, the pocket cash position is 50 lakh rupees. My gain amount is 35 lakhs, but my cash amount is 50 lakh. क्या आपको यह बात समझ में आई? अब सुनिए, वो जो कैपिटल गेन के चैप्टर में एग्जेम्पशंस मिलते हैं ना, हाउस बेच के हाउस लिया जो सबको मालूम है, दूसरे भी है जो सबको नहीं मालूम है. एग्रीकल्चरल लैंड बेच के दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड लिया, इंडस्ट्री पूरी बेच दी अर्बन एरिया से रूरल एरिया में या एसईजेड में शिफ्ट होने के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के आपने एनएचए आरईसीएल के बॉन्ड्स में, ऐसा बहुत सारा सेक्शन है. बट वन थिंग इज कॉमन इन दोज सेक्शंस. इफ आई टॉक अबाउट वन ऑफ देम, जैसे 54 हाउस के सामने हाउस, ये आपका गेन है, ये आपको जीरो बनाना है ताकि आपका टैक्स बच जाए, तो आपको नया एसेट इस प्राइस का खरीदना है. मींस यू हैव टू इन द कैपिटल गेन्स चैप्टर इन्वेस्ट द गेन अमाउंट. मगर यहां का थोड़ा सा अलग है. यहां पे अगर आपको 35 को जीरो बनाना है, ये जीरो बनेगा तो ही टैक्स बचेगा ना, तो आपको नया एसेट खरीदना पड़ेगा 50 लाख रुपीस का.
इन अदर वर्ड्स, मैं एक मस्त वाला इंग्लिश में लाइन बोलता हूं, मस्त वाला, मजा आएगा सुन के. इन कैपिटल गेन्स चैप्टर, टू सेव टैक्स वी हैव टू इन्वेस्ट द गेन अमाउंट, बट इन एनआरआई चैप्टर टू सेव टैक्स वी हैव टू इन्वेस्ट द सेल अमाउंट. नेट ग्रॉस नहीं हो सकता क्योंकि ब्रोकरेज का पैसा ऑलरेडी चला गया है. वी हैव टू इन्वेस्ट द सेल अमाउंट. तो आप अगर समझे हो सच में तो मुझे बताइए, ये वाले एग्जाम्पल में इफ वी वांट टू मेक 35 तो मुझे फॉरेक्स एसेट नया लेना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर. कितने का? कितने का? अगर मैं 50 लाख का नया एसेट लूंगा तो 35 बनता है. कैपिटल गेन्स के चैप्टर में, सुनो रे, कैपिटल गेन्स के चैप्टर में 35 का भी ले लेगा तो भी 0 बन जाएगा गेन अमाउंट. बट इन एनआरआई चैप्टर you have to invest your sale amount. Now do you understand the grammar that we have written here? Entire net sale, यहां तक समझिए खाली. Entire net sale consideration is invested, then entire capital gain will be exempt. In other words, ये देखो, अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट करोगे तो आपका 35 lakhs exempt होगा. Have you understood this? एग्जाम्पल लिख के करते हैं. अगर मैं 50 लाख इन्वेस्ट करता हूं तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 35. तो टैक्सेबल कितना होगा? कोई कोई ऐसा भोंदू होता है ना, ऐसा भोंदू साला फाइनल में आ जाता है. पार्डन माय लैंग्वेज, साला वाला करके बोलना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन ऐसा ऐसा गधा होता है. सुनना क्या करता मालूम है, शायद आपने गेस कर लिया होगा. 50 इज इन्वेस्टेड तो 35 इज एग्जाम. ये आप समझ गए. एंटायर एनएससी इन्वेस्टेड तो एंटायर कैपिटल गेन इज एग्जाम. फिर उसको टैक्सेबल पूछता है तो गधेड़ा बोलता है 15. नशेड़ी कहीं का. ये तेरा एग्जाम्शन किस में से माइनस होएगा? इन्वेस्टमेंट में से माइनस होएगा क्या? किधर से माइनस होएगा? कैपिटल गेन्स. एंड देयरफॉर कितना टैक्सेबल? 0. सो क्या आप ये पहली वाली लाइन एंटायर एनएससी इज इन्वेस्टेड तो एंटायर कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट, क्या आप ये पहली वाली लाइन समझ गए हो? बहुत बढ़िया. अब इस वाली बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, सेकंड वाली की. मेरा कैपिटल गेन कितना है? बट हाउ मच इज द कैश आई हैव? 50. मैंने नया एसेट खरीदा 25 लाख. आंसर व्हाट आई एम आस्किंग, is entire net sale consideration invested? No. Will entire capital gain be exempt? No. तो कितना exempt? Proportionate. अगर मैंने इसका आधा इन्वेस्ट किया है तो इसका भी आधा exempt. आप इसको जैसे कंफर्टेबल हो. Listen, now you can call it cross multiplication, or some of my Gujju friends they say it like this: आना आटला तो आना केटला, याचा एवढं तो याचा केवढं. वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल. कोई कोई गाना गाता है, इफ 50 lakh is invested then 35 lakh is exempt. If 25 lakh is invested then exemption will be how much? Whatever you are comfortable with. Do you understand the meaning of? मैं इसको एक वर्ड में बोलता हूं, proportionate. तो अगर 25 इन्वेस्ट किया तो कितना एग्जाम? तो कितना टैक्सेबल? गधे की तरह इधर से माइनस मत करना. कितना टैक्सेबल? 35 में से माइनस हो रहा है. समझ में आता है? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लास्ट एग्जांपल, जस्ट टू फाइन ट्यून. आई हैव इन्वेस्टेड इन फॉरेक्स एसेट, न्यू फॉरेक्स एसेट, विद इन 6 months 40 लाख. ये मोदी जी का नहीं, ये तोतला तिवारी का फेवरेट फिगर. 40 लाख. इज एंटायर नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्टेड? No. Will entire capital gain be exempt? No. तो कैसे करेंगे? Proportionate. Can I say 40/50 80%? या तुमको 80% ऐसा नहीं जमता, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 40 into 35 divide by 50. 28 will be exempt. And of course, taxable 12 लाख ना? 7 लाख. Taxable will be 7 lakh. Have we understood, मित्रों? मजा आया?
So invest in another forex asset within a period of 6 months. If entire net sale consideration is invested, तो entire capital gain will be exempt. Otherwise, proportionate exemption will be available. Are we clear on this? Clear everybody? चलिए, बहुत बढ़िया. बस इतना याद रखना कि ये जो नया एसेट आपने खरीदा है, कितने का भी खरीदा, याद है ना? इतने का खरीदते तो इतना एग्जेम्पशन मिल रहा था हमको. वो जो आपका नया वाला फॉरेक्स एसेट है, उसको आपको, ये कैपिटल गेन में भी ये सेम रूल है, आपको लॉक इन करना पड़ेगा 3 साल के लिए. मतलब शॉर्ट में बोलूंगा तो 3 साल तक आप नया वाला फॉरेक्स एसेट बेच नहीं सकते हो. नहीं तो क्या होगा, जो आपने अभी एग्जेम्पशन लिया है वो टैक्सेबल हो जाएगा. द एग्जेम्पशन टेकन राइट नाउ विल बिकम टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ वायोलेशन. नहीं तो लोग क्या करेंगे, आज एक फॉरेक्स एसेट बेच के दूसरा ले आ, उसका एग्जेम्पशन ले लिया और अगले ही दिन वो वापस बेच दिया. सो यू हैव टू लॉक इन द न्यू एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. दिस कॉन्सेप्ट विल कम अगेन इन कैपिटल गेन चैप्टर. हम इसको प्रॉपरली वापस वहां पे करने वाले. कॉन्सेप्ट सेम. दैट वॉज योर सेक्शन 115F, दैट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम 10. देख तो लगता पहले से खाली 10% है एलटीसीजी पे, वो 10% भी अगर नहीं भरना है तो इन्वेस्ट इन अनदर फॉरेक्स एसेट. नेक्स्ट कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एग्जाम पर्पसेस. कम से कम 4-5 बार सीए फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है. थियरी क्वेश्चन है, 4-5 बार पूछा है. थियरी है पूरा. व्हाट इज दिस प्रोविजन 115G? इफ मतलब कहना इसे कंडीशन दिया है. कंडीशन 1, द एनआरआई हैज नो अदर टैक्सेबल इनकम इन इंडिया. No other taxable income in India. मतलब what are the only incomes that the NRI has earned in India? Investment income and LTCG are the only incomes that he has earned in India. He does not have any other taxable income in India. Are you following? क्या कमाया है खाली उसने इंडिया में? एंड मतलब प्लस, मतलब क्यूमुलेटिव कंडीशन. TDS has been fully deducted by the payer. I'm going to tell you something very important right now. In oral discussion, in writing, one day I am only going to do it. ये आएगा, वापस आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा, बार बार आएगा. एक चीज बता रहा हूं, ओनली जनरल नॉलेज आई एम गिविंग यू, एंड दिस इज नॉट समथिंग जो आपको वो स्पेशल पेज के ऊपर लिखने की जरूरत है, क्योंकि एनीवेज कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशन में ये राइटिंग में आएगा. जब भी इंडिया से किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट होता है, किसको पेमेंट होता है? नॉन रेजिडेंट. जब भी इंडिया से किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट होता है, देयर इज अ क्लियर रूल दैट जितना उसका टैक्स लायबिलिटी इंडिया में आ रहा है, बेसिक टैक्स, सरचार्ज, एचईसी, ऑल इंक्लूसिव टोटल फाइनल टैक्स, उसको जो पैसा दे रहा है उतना टीडीएस काटना है. इन इंग्लिश, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इक्वल टू द टीडीएस डिडक्टिबल बाय द पेयर. जितना उसका टैक्स उतना उसका टीडीएस. 1 रुपया भी ज्यादा नहीं कटेगा, 1 रुपया भी कम नहीं कटेगा. सर लॉजिक क्या है? सुनिए, अगर हमने उसका ज्यादा टीडीएस काट दिया, मोर देन हिज लायबिलिटी, तो वो बेचारा यहां पे थोड़ी कि अपने रिफंड के लिए बैठा रहेगा पागल की तरह. ही हैज टू टेक हिज पेमेंट ऑन व्हाट ही हैज अर्नड इन इंडिया एंड लीव. तो ज्यादा काट लिया तो बेचारा रिफंड के लिए बैठा तो नहीं रहेगा. और अगर हमने कम काट लिया तो बेचारा असेसिंग ऑफिसर कुत्ते की तरह उसके पीछे थोड़ी भागेगा वहां पे टैक्स रिकवरी करने के लिए फॉरेन कंट्री में. एनीबडी हैज असेसिंग ऑफिसर इन फैमिली? डीसीआईटी, एसीआईटी, किसी के फैमिली में कोई भी आईटीओ कुछ भी है? हां, तो असेसिंग ऑफिसर कुत्ते की तरह थोड़ी भागेगा उसके पीछे रिकवरी करने के लिए. इफ वी डिडक्ट मोर देन ऑल्सो देयर इज प्रॉब्लम. इफ वी डिडक्ट लेस देन ऑल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम. लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड आई एम गोइंग टू से दिस अगेन एंड अगेन. टीडीएस के टीडीएस चैप्टर नंबर 27 है, वॉल्यूम 2 के अंदर है. वॉल्यूम 1 इज 16 चैप्टर, वॉल्यूम 2 इज
अगेन 16, मतलब टोटल 32, तो उसमें 27वां चैप्टर वॉल्यूम 2 के अंदर आता है टीडीएस। तब तक आपको बार बार बोलता जाऊंगा, नॉन रेसिडेंट का लायबिलिटी इक्वल टू टीडीएस, टैक्स लायबिलिटी एग्जैक्ट इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ द फाइनल रुपी इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड एचईसी। मतलब कहना इसे गोइंग बाय दैट रूल, जिसने भी उसको इन्वेस्टमेंट इनकम और एलटीसीजी के लिए पैसा दिया होगा उस बंदे ने उसका टीडीएस काटा होगा एज पर रूल्स। तो सुनिए, कंडीशंस को समझते हैं। इस नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में सिर्फ 2 इनकम कमाया, विच आर द ओनली 2 इनकम दैट ही हैज अर्न्ड इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट इनकम एंड LTCG are the only 2 incomes that he has earned in India. एंड इनके ऊपर जितना टीडीएस बनता है वो डिडक्ट हो गया। क्या ये 2 कंडीशन समझ में आई? इसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, कंडीशन की इंटरप्रिटेशन सुनना मजा आने वाला। दैट मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस नॉन रेसिडेंट की जो टैक्स लायबिलिटी है वो टैक्स का पैसा मिल जाएगा फ्रॉम द पेयर हु हैज डिडक्टेड टीडीएस, और कोई टैक्स लायबिलिटी आने का कोई होप्स भी नहीं है। व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज देयर इज नो अदर टैक्सेबल इनकम। दैट मीन्स टैक्स पूरा मिल गया है और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बात आप मानते हो? तो अब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक नाउ। थिंक अबाउट इट एज एन असेसिंग ऑफिसर। मतलब कितना मस्त प्रोफेसर मिला है, थिंक अबाउट इट। आपको बिना यूपीएससी के एग्जाम दिए, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी चीज के असेसिंग ऑफिसर अपने आप को बना रहा है। आपको असेसिंग ऑफिसर इमेजिन करवा रहा है। मतलब थिंक अबाउट इट एज एन एम। व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन? द नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द असेसी, करेक्ट? नो? नहीं, डिपेंड करता है। इफ द असेसी इज ऑफ द ऑपोजिट जेंडर तो बार बार समन्स भेजने का उसको नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट एक ऐसा असेसिंग ऑफिसर जो अपने काम के बारे में बहुत सिंसियर है। इज ही इंटरेस्टेड इन द नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ? ही इज इंटरेस्टेड इन द टैक्स। कोई बच्चे को ये पूछते तो वो इनकम बोलता है, पर उसको इनकम नहीं मिलती, उसको खाली टैक्स मिलेगी। इनकम हमारी है, गवर्नमेंट का खाली टैक्स है। ही इज इंटरेस्टेड इन द टैक्स लायबिलिटी। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या वो टैक्स लायबिलिटी उसको मिल गई है? और क्या और कुछ मिलने वाला है? नहीं। तो जब मुझे टैक्स का पैसा मिल गया और कुछ मिलना नहीं है, तो मैं जबरदस्ती तेरा नेम, एड्रेस, जेंडर का, डेट ऑफ बर्थ का डेटा कलेक्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बाबू जी ने बोला था ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। यू नो बाबू जी, कोई बात नहीं, जा नॉन रेजिडेंट जा। इंडिया में तुझे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन एग्जाम। Who are the assessees who are not required to file return of income under income tax? टोटली इनकम टैक्स में ऐसे 4 केसेस है। प्लीज लिसन टू मी, 4 केसेस। राइट नाउ वी हैव स्टडीड 1 in 115G NRI, and there are 3 more cases in the very next chapter, special rates of tax. Of course, अभी हमने एक पढ़ा है, 3 और पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, आपको चारों लिखना पड़ेगा। 115G from NRI chapter and 3 sections from special rates of tax chapter. 4 cases in income tax where assessee will get immunity from doing what? Filing of ROI. But the good news is that in all the 4 cases यही दोनों कंडीशन है। What are the 2 conditions to get immunity from filing of ROI? No other taxable income in India and TDS has been fully deducted. No other income, TDS deducted. No other income, TDS deducted. तो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। No need to file return of income under NRI and 3 more cases in special rates. एग्जाम में हम लोग चारों लिखेंगे, अभी हमको एक पता है, बस खाली आप मेरे को कंडीशंस बता दीजिए। What are the conditions to get that immunity? No other taxable income in India and TDS has been fully deducted. No other taxable income in India and TDS has been fully deducted. तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं।
अंडरस्टूड 115G कम से कम 4-5 बार एग्जाम में पूछा है इसको, बट आपको चारों केस लिखने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर, ये वाला केस एंड स्पेशल रेट्स के 3 कंडीशंस आर सेम. एंड दिस टेक्स अस टू सेक्शन 115H and section 115I. And I already gave you the range. I don't know whether you remember. Section 115I पे चैप्टर 12 में एनआरआई का चैप्टर खत्म होता है, अपना भी चैप्टर खत्म होता है. मित्रों अपना भी चैप्टर खत्म होता है. ठीक है, तो सुनिए. पहले 115I की बात करता हूं. 115I बोलता है कि चैप्टर 12A, व्हाट इज चैप्टर 12A? व्हाट इज चैप्टर 12A? आवाज गया क्या? एनआरआई टैक्सेशन. चैप्टर 12A के अंदर जो टैक्स की रेट्स दी है, व्हाट आर द रेट्स गिवन? नाउ टेल मी. इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए, एलटीसीजी के लिए, चैप्टर 12A का जो रेट्स है वो ऑप्शनल है. डू यू नो दिस? कौन बोला बे ऑप्शनल है? किसने बोला तुमको चैप्टर 12A ऑप्शनल है? मैंने बोला. मैं कौन होता है बोलने? देख, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाला है बहुत जल्दी. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. टॉक्स आर गोइंग ऑन. और मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन भी गया ना तो साल के 2 बैच तो लूंगा. 1 हिंदी इंग्लिश मिक्स एंड 1 ओनली इंग्लिश, स्पेशली फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, लाइक आई डू नाउ ऑल्सो. यू नो व्हाट, एवरीबडी विल लर्न फ्रॉम मी ओनली. जो मैं बोलेगा वही तो लॉ होएगा. रॉन्ग भी बोल दिया तो भी, मैं फाइनेंस मिनिस्टर है तो मैं बोला वही लॉ है. हेलो. जब तक मैं बना नहीं हूं, टिल दैट टाइम मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है. द प्रोविजन शुड से दैट दिस चैप्टर इज ऑप्शनल. मैंने जब चैप्टर चालू किया ना, स्पेसिफिक एसेसी, स्पेसिफिक इनकम, स्पेशल रेट, ब्रैकेट में ऑप्शनल, वो ऑप्शनल वर्ड कहां से आया? वो यहां से आया. मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है. मैंने जो बोला था वो 115I बोल रहा है और मैंने आपको बताया. सो द चैप्टर इज ऑप्शनल, ऐसा कहां पे लिखा है? 115I में लिखा है. दैट्स इट. 115I के बारे में बात करेंगे. तो अब बात करते हैं 115H के बारे में. And before I tell you what is 115H, I have a question for you. Residential status depends on number of days the assessee spends in our country, and which of course will remain same every year. Yes or no? देखो, हर बात में है ना, सुबह सुबह ना धो के हाँ में हाँ नहीं मिलाने का, सुन लेने का क्या बोल रहा है. Will residential status remain same every year? नहीं. Is it possible that फ्यूचर में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया? पॉसिबल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में आया एंड कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडियन पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स एक्वायर किए. पब्लिक कंपनी ना, डिबेंचर्स, तो वो एसेट, फॉरेक्स एसेट है. असेसीज एनआरआई मतलब कॉम्बो हो गया. On the debenture interest which the non-resident is earning, of course we have the option normal rate or special rate, whichever is beneficial. No problem. बहुत बढ़िया. अगले साल वो नॉन रेसिडेंट फिर इंडिया में खाली 10 दिन के लिए आया था, तो फिर नॉन रेसिडेंट, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट मिलेगा, नॉर्मल एंड स्पेशल whichever is beneficial. 4-5 साल तक ऐसा ही चल रहा था. वो थोड़े दिन के लिए इंडिया में आता था, नॉन रेसिडेंट बनता था, बाकी स्पेसिफिक इनकम तो हो ही रहा है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फॉरेक्स एसेट, कॉम्बो हो रहा था, विच एवर इज बेनिफिशियल. 6th ईयर ना उसको इंडिया से थोड़ा सा प्यार हो गया. ही फेल इन लव विद समवन एंड ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन ओवर हियर. इन द 6th ईयर ही स्पेंट 200 days इन इंडिया. इन द 6th ईयर ही हैज बिकम रेसिडेंट. इज इट पॉसिबल? आई एम आस्किंग. तो अब ये असेसी रेसिडेंट बन गया है, तो इसको डिबेंचर इंटरेस्ट मिलेगा कि मिलना बंद हो जाएगा? मिलेगा. रेसिडेंट बनने के बाद भी ऑफ कोर्स मिलेगा. मेरा स्टेटस क्या, उससे कंपनी को क्या मतलब है?
Will I still get debenture interest? Yes. But now I have become resident, तो ये debenture interest taxable, टैक्सेबल होगा. हाँ, ये डिबेंचर इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा. Yes, sir. व्हाट इज द रेट दैट विल बी एप्लीकेबल? ये मेरा क्वेश्चन है. Normal. किस रेट पे टैक्सेबल होगा, वही तो क्वेश्चन है मित्रों, वही तो क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ में आता है क्या? व्हाट इज योर आंसर? Slab. स्लैब मत बोलो, नॉर्मल बोलो. नॉर्मल इज मोर अप्रोप्रिएट. आफ्टर बिकमिंग रेजिडेंट व्हाट विल हैपन, दैट्स द क्वेश्चन. मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया. स्टोरी समझा? आप लोगों ने तुम लोगों ने आंसर तो नहीं लिख दिया ना? आप लोगों ने क्या ऑप्शन दिया? स्लैब. स्लैब मतलब नॉर्मल रेट्स. इंडिविजुअल के लिए स्लैब होता है. बट योर वर्ल्ड इज गोना टर्न अपसाइड डाउन. You're gonna get very angry. बहुत गुस्सा आने वाला. आपके घर में अंडा टमाटर है तो मार देना स्क्रीन पे. कोई बोलेगा मैं वेजिटेरियन है तो अंडा होएगा ना, टमाटर होएगा ना. इसके ऊपर भी पीपल हैव डन रिसर्च कि एग इज वेज और नॉन वेज. देयर आर पीपल हु हैव डन रिसर्च ऑन दिस. कुछ भी कर, कितने फ्री बैठे लाइफ में. टमाटर है, वो मार दो. छोड़ो, एक काम करो, पत्थर, दगड़ समझता, दगड़ लेके आओ, पत्थर लेके आओ, तोड़ दो. एक काम करो, स्क्रीन ही पटक दो. इतना गुस्सा नहीं. फेंक दोगे क्या लैपटॉप? नहीं. बहुत तेज गुस्सा आने वाला आपको. You're gonna get, but the truth is, the option is still going to be available. ऑप्शन अभी भी अवेलेबल होगा मित्रों, ऑप्शन अभी भी अवेलेबल होगा. Is this not contradicting what we have been saying all throughout the chapter? Combo. अभी बोलता है कि रेसिडेंट बनने के बाद भी ऑप्शन मिलेगा. मींस अपनी स्टोरी को याद कीजिए. इफ यू रिमेंबर 6th ईयर में रेसिडेंट बन गया था. व्हाट इज द सेक्शन सेइंग? ऑप्शन इज स्टिल अवेलेबल. 2-3 साल और रेसिडेंट बनेगा, ऑप्शन इज स्टिल अवेलेबल. एक दिन एसेट बेच देगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ऑप्शन इज स्टिल अवेलेबल. ऑफ कोर्स आफ्टर सेल ऑफ द एसेट क्वेश्चन ऑफ ऑप्शन डज नॉट अराइज बिकॉज देयर वोंट बी एनी मोर इनकम फ्रॉम दैट. अब वो एसेट ही मेरे पास नहीं है. Is it contradicting what I have told you all throughout the chapter? Combo. अरे रुको जरा, सबर करो. ऑप्शन अवेलेबल होगा रेजिडेंट बनने के बाद इफ यू वर नॉन रेजिडेंट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. इफ यू वर नॉन रेजिडेंट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो जब तक आपके पास एसेट है तब तक आपको यह ऑप्शन अवेलेबल रहेगा. मतलब चैप्टर बोलता है कॉम्बो होगा देन ओनली ऑप्शन. कॉम्बो. हेलो रे, कॉम्बो. आर यू विथ मी? मतलब नॉन रेसिडेंट होने की रिक्वायरमेंट को हम लोग ने डिलीट किया क्या? नहीं. नॉन रेसिडेंट तो तुझे बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा. नॉन रेसिडेंट हुए बिना, नॉन रेसिडेंट बने बिना ये ऑप्शन तुझे मिलने वाला नहीं है. नॉन रेसिडेंट बनना मैंडेटरी है. इनकम वाले साल में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, परचेस ऑफ एसेट वाले साल में हुआ तो भी चलेगा. एक काम करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी को यूज करता हूं. टेक्नोलॉजी को आई हैव एडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी इन माई प्रोफेशन अर्लियर एंड बेटर देन एनीबडी एल्स. आज जब ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं तो ये सिस्टम के टैब के ऊपर लिखने का और ये सब सिस्टम मैं तो आज से 3-4 साल पहले से ही
फिजिकल क्लासरूम, क्योंकि सम ऑफ द क्लासरूम्स वेयर आई वर्क, वो क्लासरूम नहीं थिएटर है। मैंने एक क्लास में एक साथ एक टाइम पे लाइव 600 बच्चे को भी पढ़ा। अहमदाबाद में तो वो ऑडिटोरियम में पढ़ा। अभी ऑडिटोरियम में अगर मैं बोर्ड पे लिखेगा ना मार्कर पेन से, तो वो जो बच्चा लास्ट रो में बैठा है ना, उसने आज तक कभी मेरे को ही नहीं देखा। मेरा फेस खाली आवाज सुनता है, लास्ट रो में बैठा बैठा आवाज सुनाई देता है। अब कैसा है, क्लासरूम का गेट इज नियर द लास्ट रो, और वो लास्ट वाले बच्चे कैसा होता है, मेरे क्लास में पहुंचने के आधे घंटे बाद में क्लास में आते हैं। तो मैं तो स्टेज पे ऑलरेडी पहुंच गया हूं, वो लोग पीछे आके बैठे, उनको खाली मैं दिख रहा हूं इतना सा, इत्तू सा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। और लेक्चर खत्म होता है, मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूं, उसके पहले तो वो बैग लेके निकल जाते हैं। उन्होंने मेरे को कभी देखा ही नहीं, खाली मेरी आवाज सुनी, क्लास में मैं हूं। बट वॉट आई एम राइटिंग, एटलीस्ट दे नीड टू सी दैट नो, मेरा फेस क्लियरली विजिबल नहीं होएगा या कोई प्रॉब्लम होएगा तो चलेगा, जो लिख रहा हो वो तो दिखना चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी क्लासरूम्स में पढ़ाने के लिए मैंने ये टेक्नोलॉजी बिफोर एनीबडी एल्स ऑलरेडी अडॉप्ट कर ली। और टेक्नोलॉजी का एक और एडवांटेज है, आज कोई बच्चा बोलेगा कि सर मेरे को कोविड हो गया था, मैं 4-5 दिन क्लास अटेंड नहीं किया, क्या आप मेरे को पहले के क्लासेस का स्क्रीनशॉट्स दे सकते हो? हाँ दे सकता हूं, ये लेना, इंट्रोडक्शन, DTAA, कैश लोन्स, NRI सब है। आई हैव बीन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी since 3 years now. I adopt new technology जैसे ही वो आता है, और आज उस टेक्नोलॉजी की बदौलत एक मस्त चीज आपको सिखाने वाला हूं। अगर आज ये क्लासरूम के अंदर मार्कर के साथ पढ़ा रहा होता तो मैं ये वाला टेबल आपको वापस नहीं दिखा सकता। ये टेबल याद है? ये कौन सा टेबल? स्पेसिफिक असेसी बनने का 3 कंडीशन, इंडिविजुअल, सिटीजन, PIO, 2 में से कोई एक। सबसे इंपॉर्टेंट, असेसी हैज टू बी नॉन रेसिडेंट। That means it's a mandatory requirement of the chapter. नॉन रेसिडेंट बने बिना तुम यहां पे आ जाओ ऐसा सोचना भी मत। नॉन रेसिडेंट तो तुमको बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। लेकिन सुनो रे, दिस कैन बी द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ योर फॉरेक्स एसेट। जरूरी नहीं है कि जिस साल आप इनकम कमा रहे हो उस साल आपको नॉन रेसिडेंट बनना है। हेलो, इनकम वाले साल में नॉन रेसिडेंट नहीं हुआ तो भी चलेगा, अगर तू परचेस वाले साल में नॉन रेसिडेंट था। मतलब परचेस वाले साल में नॉन रेसिडेंट बनना इज बेटर, क्योंकि एक बार आप उस साल नॉन रेसिडेंट हो तो जब तक आपके पास ये एसेट है तब तक आपके पास ऑप्शन इज गोइंग टू बी अवेलेबल। एंड ऑफ कोर्स बेचने के बाद में वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ ऑप्शन। तो माय क्वेश्चन इज, क्या इस चैप्टर में नॉन रेसिडेंट होना मैंडेटरी है कि बिना नॉन रेसिडेंट बने भी काम चल जाएगा? नॉन रेसिडेंट तो बनना पड़ेगा। हम कहीं पर भी ये कंडीशन को कैंसिल नहीं कर रहे, नॉन रेसिडेंट तो बनना पड़ेगा। मगर इनकम वाले साल की जगह पे परचेस वाला साल भी हुआ, देन ऑल्सो इट इज ओके। नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल इंक्लूड द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये कल के स्क्रीनशॉट में चला गया था। अगर इसको आपको लिखना है तो आप अभी लिख लो। देन आई विल कम डाउन, आई विल स्क्रॉल एंड कम डाउन टू 115H, व्हाट आई वाज डूइंग राइट नाउ। हो गया ना, ये इंक्लूडिंग ईयर ऑफ एक्विजिशन है, वही नीचे 115H में भी लिखा है। मतलब क्या रेसिडेंट बनने के बाद में मुझे NRI के रेट्स मिलेंगे? यस, अगर मैं परचेस के टाइम पे नॉन रेसिडेंट था तो रेसिडेंट बनने के बाद भी मुझे ऑप्शन मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड? Ladies and gentlemen, boys and girls, congratulations. That was your chapter number 4, NRI taxation.